Very good morning to all my dear students of class 10. Today in this video we are going to see about the formula for surface area and volume of some solid figures which we usually use in our daily life. This video is only to inform you about the previous knowledge that you have already read in class 9. आपने सॉलिड फिगर्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालने क्लास 9 में सीखा है. क्लास 10 में आपको इसके आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे विच विल बी डिपेंडिंग अपॉन कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स. वो हम बाद में देखेंगे. पहले वी विल बी सीइंग अबाउट द कॉमन फिगर्स. जस्ट लाइक द फर्स्ट वन वी आर हैविंग इज क्यूब का हम लोग देखते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू गेट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. द वेरी फर्स्ट यू कैन सी इन द क्यूब वी आर हैविंग टोटल. जब हम एक क्यूब को ओपन करके देखते हैं इसके पास हमारे 6 सरफेस मिलता है. व्हेन वी ओपन, दिस इज द नेट डायग्राम ऑफ अ क्यूब. व्हेन वी ओपन दिस वी गेट ऑल इन ऑल 6 सरफेसेस. और हर सरफेस जो है वो एक स्क्वायर शेप का होता है जिसका डायमेंशन s के बराबर मैंने यहाँ पर दिखाया है. सो इन this figure we are having s as the dimension of the sides of the cube. So for total surface area we are having 6 squares. So s square is of area of 1 square. So total surface area will be 6s square. And similarly when we talk about the lateral surface area, जो आपको पता है कि हम अगर 4 दीवार की बात कर रहे हैं बिना छत और बॉटम को लिए, यानी फ्लोर और छत को एक घर का हटा दिया जाए, ओनली 4 वॉल्स वी आर टॉकिंग अबाउट. तो अगर हम इस पेपर को फोल्ड कर देते हैं और ये टॉप एंड बॉटम का एरिया को हटा देते हैं, so you will be getting as the lateral surface area, and the lateral surface area will include only 4 square. So the formula for the lateral surface area of the cube is 4s square. Now going for the volume of the given solid figure. In the volume of the given solid figure, the formula of volume we actually derive is from base into height. We usually do is base into height, base area into height. So when we see a cube, the base area of the cube is in the form of a square. It is in the form of a square, and hence we can write it down. The base area is s square, and the base area is s square, and the volume is base area into height. Height is also s, and s square is the base area. Multiply both them, we will get s cube. So s cube means side cube is the volume of the given figure. Moving toward the next one, that is about the cuboid. This is also very clear to everyone that cuboid is folded out of a cardboard. जब हम इसको इससे कार्डबोर्ड को मोड़ कर बनाएंगे cuboid, you can see here the different kinds of rectangles we are getting. Height है, breadth है, length है. So you are getting different kinds of rectangle. हर rectangle का dimension अलग अलग है. इस साइड में breadth है, इस साइड में height है. So the area will be b into h. इसमें इस साइड में length है, इस साइड में height है. So LH is the area. So you can find it out that when we write the total surface area, we are getting 2 times LH rectangle, 2 times BH rectangle, and 2 times LB rectangle. The areas of two rectangles are common. So we can take 2 as common from all of them, and we can write LB plus LH plus BH. This is the total surface area, just like the mithai ka dabba, which we fold up and we make a cuboid shape. But when we talk about a lateral surface area, we usually replace these 2 sides. BH and BH को हम हटा देते हैं, बाकी चारों साइड को हम फोल्ड कर देते हैं. So on folding the other 4 sides, we remove the BH one and we have only twice of LH plus twice of LB. So ये 2L हम बाहर निकाल सकते हैं, and H plus B is the formula for lateral surface area of the cuboid. Similarly, if we go for the volume, in this also we are having the same concept. Base area हमारा एक rectangle है जो कि L into B है, and height
the height is also given. L into B is the base area rectangle ka, and the height is also given, that is H. So we are having the volume as LB into H. So this is about the volume of a cuboid. अभी तक हमने दो चीज़ें देख लिया, एक क्यूब और एक क्यूबॉइड. तो क्यूब के लिए भी हमने देखा टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया 6s², 4s², और उसकी वॉल्यूम देखा s³. ध्यान रहेगा कि एरिया रहेगा तो यूनिट स्क्वायर में आना चाहिए, इसीलिए हमेशा हमारा जो टर्म्स है वो स्क्वायर रहता है. लेकिन जब वॉल्यूम रहेगा तो यूनिट क्यूब में आना चाहिए, इसीलिए जो हमारा डायमेंशंस है उसकी क्यूब होनी ज़रूरी है. सो सेम थिंग वी गेट इन द क्यूबॉइड ऑल्सो. जब आप किसी भी टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे लाइक LH, LB या BH, यू विल गेट सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर ऑलवेज. तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर द यूनिट विल बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए. बट वही आप अगर वॉल्यूम में देखो तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 3 times वी विल मल्टीप्लाई एंड विल गेट सेंटीमीटर क्यूब. सो ये चीज़ें ध्यान में रखना है. वॉल्यूम के लिए क्यूब होना चाहिए और एरिया के लिए you should get centimeter square. Moving on to the next solid figures we will be having here is cylinder. In the case of cylinder also it is very simple. cylinder को अगर हम open करके देखते हैं it's like a rectangular sheet of paper, जिसको हम अगर fold कर दे तो वो एक cylinder बन जाएगा. तो जब हमने इसको ओपन कर दिया तो जो रेक्टेंगल शीट की जो लेंथ निकल के आ रही है वो सिलेंडर को मोड़ने से एक सर्कल बनाता है. जो बॉटम का हिस्सा, ये सर्कुलर हिस्सा, दैट इज द लेंथ ऑफ द शीट, एंड जो ब्रेथ निकल कर आ रहा है दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. सो व्हाट वी हैव टू सी, अगर हम उसका पूरा एरिया निकालें सरफेस का तो लेटरल सरफेस एरिया जो निकलेगा वो L इंटू बी विल बी द एरिया ऑफ द शीट. इस शीट का एरिया होना चाहिए. सो दैट इज 2πr विच इज L इंटू H विच इज द हाइट. तो 2πrh इज द एरिया ऑफ द कर्व्ड पोर्शन ऑफ द सिलेंडर. तो सिलेंडर का जो कर्व्ड पोर्शन है तो उसको हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं. बट अगर हमें टोटल सरफेस एरिया की बातें करनी है इट मीन्स इट शुड बी अ क्लोज्ड सिलेंडर. क्लोज्ड होना चाहिए सिलेंडर, ऊपर से भी ढका हुआ नीचे से भी ढका हुआ. तो हमें और उसमें क्या ऐड करना होगा, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स. ऊपर से भी एक सर्कल और नीचे से भी एक सर्कल. सो हमने 2πrh विच वॉज द लेटरल सरफेस एरिया and added 2πr² which is the area of the 2 circles. So on taking the 2πr common we will be having h plus r inside the bracket. This is the total surface area of the cylinder. Right, what about the volume of the cylinder? When we talk about volume we have only one criteria, that is base area into height. So base area is a circle which is πr² and height is given as h. Now there is a concept I have written is a right circular cylinder. Whatever cylinder we use in our context is only right circular cylinder. And what is its meaning, how it is different from the other usual cylinders? क्यों हम लोग इसको circular cylinders क्यों नहीं बोलते, only cylinder क्यों नहीं बोलते? Because if you see the image it will be more clear to everyone. I am making a cylinder like this here, but it is not having a formula like this. ये हमारा यूजुअल सिलेंडर नहीं है जो कि टिल्टेड है. अगर हमारा सिलेंडर राइट सर्कुलर है इसका मतलब ये बॉटम के साथ में बेस के साथ में हाउ मच डिग्री, दैट शुड मेक 90 डिग्री. देन ओनली द सिलेंडर विल बी कॉल्ड एज राइट सर्कुलर सिलेंडर. और हमारे सिलेबस में वी हैव टू डील ओनली विद द राइट सर्कुलर सिलेंडर. सो क्वेश्चन में भी आपको हमेशा राइट सर्कुलर सिलेंडर ही दिया होगा. Now we see about is the cone. The next one we will be moving forward is about cone. In cone you can see that cone when we open it will be coming like a sector, जिसका कि L यहाँ पे स्लैंट हाइट दिया हुआ है. फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन इज द स्लैंट हाइट, इसको स्लैंट हाइट कहा जाता है. तो अगर हम इसको पूरा बड़ा सा एक सर्कल की तरह ड्रॉ करें तो ये बड़े वाले सर्कल की क्या है, रेडियस है. और ये 2πr जो सेक्टर का ये आर्क लेंथ आ रहा है विल बी द सर्कुलर सर्कमफेरेंस ऑफ दिस कोन.
इसको अगर ओपन कर दिया जाए तो इस तरह से सेक्टर का एरिया, और इधर से अगर हम यहाँ पे ग्लू डाल के इस दोनों तरफ से चिपका दें तो एक कोन फॉर्म हो जाएगा. So this is also a right circular cone because it is making a 90-degree with the bottom. So this is a right circular cone. Now let us see how to find the area of this cone. For finding the area of this cone, we have to cut small pieces, small strips of this particular paper, जिसको खोलकर, कोन को खोलकर हमने जो बनाया, और उसको फिर अरेंज कर देना है like this to form a rectangular shape. Now when you form a rectangular shape, ये 2 पाई आर था, तो आधा ऊपर चला गया पाई आर और आधा नीचे चला गया पाई आर, एंड ये लेंथ जो है ये स्लैंट हाइट है हमारी. नाउ यू गॉट अ रेक्टेंगुलर शीट जिसकी लेंथ है पाई आर और ब्रेथ है एल. सो लेंथ इंटू ब्रेथ करने से यू विल बी गेटिंग पाई आर इंटू एल. तो पाई आर एल जो है वो आपका लेटरल सरफेस एरिया है कोन का. लेकिन अगर हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो वी हैव टू इंक्लूड पाई आर स्क्वायर विच इज़ द टॉप पोर्शन, द टॉप सर्कुलर पोर्शन. इसके ऊपर अगर कवर लगा हुआ है इसका मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए होगी. सो वी आर हैविंग नाउ वॉल्यूम विच इज़ अगेन, नाउ यू कैन सी हियर व्हाट इज़ द डिफरेंस. अगर हम बेस इंटू हाइट करें तो विल बी गेटिंग द सेम वॉल्यूम एज अ सिलेंडर. लेकिन कोन को आप देखो तो वो सिलेंडर के जैसा बिल्कुल नहीं है. इनफैक्ट अगर हम इस तरह से इसको बॉटम से मिलाएं और एक यहाँ से सर्कल ड्रॉ करें, एक सिलेंडर के अंदर आप देखो तो तीन कोन्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं. इधर से भी एक कोन बन रहा है, इधर से भी कोन बन रहा है, और सेंटर में तो बन ही रहा है. मतलब एक सिलेंडर में 3 कोन्स हम फिट कर सकते हैं. सो वी कैन राइट दैट एक कोन का जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के 1/3 मतलब 1/3 होना चाहिए. So we will directly be writing as 1/3 of the volume of cylinder. So 1/3 of pi r square h. Pi r square h is the volume of cylinder, and 1/3 we have added because we are having only 1/3 part of the cylinder. So this was about all the solid figures. You can see here cylinder and cone, cuboid and cube हमने पहले देखा है. Next is about circular objects. Circular objects we include sphere, solid hemisphere, hollow hemisphere. These objects you cannot derive any kind of formula. Only you have to remember that अगर हम एक कॉइन को लेते हैं और उसको हम ऐसे करके रोटेट कर देते हैं, जब जैसे आप करते हो, एक बैंगल को लो या उसको ऐसे घुमा दो, तो एक बैंगल जो है वो एक सर्कल के टर्म में होता है. और अगर हम उसको चारों दिशा में घुमा देते हैं, इट मीन्स वी आर मूविंग ऑल द 4 साइड्स टुवर्ड्स ऑल द 4 डायरेक्शन. तो पाई आर स्क्वायर हमारा सर्कल था, उसको हमने चारों बगल में घुमा दिया तो एक स्फीयर की तरह फॉर्म होता है. तो वो स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वही उसका लेटरल सरफेस एरिया होगा. दे टू विल बिकम सेम 4 पाई आर स्क्वायर. एक पाई आर स्क्वायर सर्कल था, घुमा दिया, इट बिकम 4 पाई आर स्क्वायर. वॉल्यूम के बारे में बात करा जाए तो दिस डेरिवेशन यू कैन नॉट फाइंड इट आउट. दिस इज़ 4/3 पाई आर स्क्वायर. यू कैन रिमेंबर दिस, यू कैन रिकॉल दिस. आपको याद करना होगा तभी जाकर क्वेश्चंस आराम से बन सकेगा. व्हाट अबाउट सॉलिड हेमिस्फेयर. सॉलिड बोल रहे हैं तो वो पूरा भरा हुआ होना चाहिए, नीचे से भी खाली नहीं होना चाहिए. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर. अगर 4 पाई आर स्क्वायर पूरा स्फीयर का एरिया था, उसका आधा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फेयर का एरिया होगा. और टोटल बोला जाए तो 1 पाई आर स्क्वायर नीचे से भी जोड़ दिया जा रहा है, बॉटम को कवर किया जा रहा है, तो 3 पाई आर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया. वॉल्यूम का बात किया जाए तो बिल्कुल है कि सॉलिड स्फीयर का आधा होना चाहिए. तो अगर ये 4/3 था, डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 2/3 पाई आर क्यूब. ना व्हाट अबाउट हॉलो हेमिस्फेयर. हॉलो मतलब वो अंदर से खाली है. तो जो हेमिस्फेयर का क्राइटेरिया है वही हमारा हॉलो हेमिस्फेयर का भी है, लेकिन इसमें नीचे से कुछ लगा नहीं हुआ है, कुछ कैप लगा नहीं हुआ है. तो जो टोटल सरफेस एरिया है और जो लेटरल सरफेस एरिया है दे विल बिकम सेम. नाउ वॉल्यूम इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सॉलिड हेमिस्फेयर. सो दिस वॉज अबाउट द सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स, स्फीयर, सॉलिड हेमिस्फेयर एंड हॉलो हेमिस्फेयर. नाउ वी हैव questions which comes in board exam will not depend upon single figures, will have composite figures or combination of figures. As you can see here, circle के ऊपर hemisphere,
हेमिस्फेयर के ऊपर कोन, सिलेंडर के ऊपर कोन, सिलेंडर के अंदर में हेमिस्फेयर, सिलेंडर के दोनों साइड में हेमिस्फेयर, क्यूबॉइड के ऊपर हेमिस्फेयर। तो दीज आर कॉल्ड कंपोजिट फिगर्स। तो अगर आपको फॉर्मूला सभी का आता है तो इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम विल बिकम द टोटल वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम विल बिकम टोटल वॉल्यूम। सो अगर आपको फॉर्मूला सबका आता है, no difficulty is there in class 10 for finding the volume or surface area of these figures, because already we have discussed so nicely all the figures and their surface area. We saw about cylinder as well as we have seen about the cone, then we have also seen about क्यूब भी हमने देखा एंड क्यूबॉइड को भी हमने देखा. So you have seen all the solid figures, so it will become very easy for you to solve the questions in class 10.